Okay, student, let's start day 6 of this online web series. Yesterday we did complex numbers, and we are going to continue complex number, and we'll finish this particular topic today. Okay, so we did 3 topics yesterday. We did basics of the complex number, that is basically iota. We did conjugate and modulus, and we did study argument, that is amplitude also. Now today we are going to study these 4 topics, right? So as per the JEE main syllabus, if I have to say, they are not mentioned in the syllabus, but yes, they are important because they might be asked in some other exams or indirectly asked in JEE mains, which can make questions easy for you. So let's start today with first topic of the day, that is Euler form. Okay, now let's see what is Euler form. Okay, so for Euler form, first of all, you will have to remember a formula which is given by something like this: e raised to power iota theta. All right, this is e raised to power iota theta is nothing but cos theta plus iota sine theta. Okay, so you have to remember this property. So if there is any complex number r, right, that is given by z plus x plus iota y, we can write it in the form of Euler's. What it says, r times cos theta plus iota sine theta. Now let me explain it to you. What do you mean here by r and theta? So for example, if z is there, so if z is x plus iota y, right, so we know mod z की वैल्यू क्या होती है, x square plus under root x square plus y square. This quantity is actually equal to r. जो ये मैंने यहाँ r लिखा हुआ है, the thing r over here, this actually means mod z, that is under root x square plus y square, right? So if you were asked to find or represent any complex number in the Euler form, so first of all what you will do, you will find the modulus. What do you mean by theta here? So theta over here is nothing but the argument of z. Remember yesterday we did what is argument? So theta here is argument. So in fact, if you see, it is nothing but, if you can say, z can be written as mod z into e raised to power iota argument z. In another way, it could be written like this, right? So for your basic understanding, I have already taken some basic examples. So for example, what if we want to write, let's say, let me just change the pen to highlight some stuff. So if we want to write 1 in Euler form, so 1 is what point in argument plane? It is 1, 0 because it is purely real, imaginary part is 0. What is the amplitude or the argument of 1? 1, 0 lies on positive real axis. We did yesterday, remember? थोड़ा सा बना देता हूँ, याद करें, ये यहाँ पर लाई कर रहा है 1, 0, so it makes an angle 0 degree with positive real axis. So इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, 0. मॉडुलस क्या है 1, 0 का? दैट मॉडुलस क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम origin. It is 1 units away. So in fact, I have not written here 1. If you want to write, you can write 1 times e raised to power iota 0 is nothing but 1, written in Euler format. How do we write iota then? Iota कौन सा पॉइंट है आर्गन प्लेन में? 0, 1. भाई अगर z बोलता हूँ iota, तो इसका क्या है, रियल पार्ट तो है ही नहीं. So this can be written as 0 plus iota. So this is nothing but 0, 1 point. What is the angle it is making? 90 degree. See to it here. मैंने क्या लिखा है, e की पावर आयोटा पाई बाई 2. क्यों? इसका पाई बाई 2 क्या है, इसका पाई बाई 2 इज दी आर्ग्यूमेंट, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पाई बाई 2. फिर से इसका मॉड देखो क्या है, मॉड इज 1, सो आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर, इट इज 1 ओनली, राइट? मॉडुलस ऑफ आयोटा इज 1. तो ये बेसिक चीजें याद करनी पड़ेंगी. अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो कमांड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. योर स्पीड विल ऑल्सो इंप्रूव ड्रास्टिकली. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू राइट -1, लेट्स से दिस इज -1 हियर, राइट? -1 कितना एंगल बनाएगा भाई? इट विल मेक एन एंगल ऑफ पाई, राइट? सो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, e raised to power iota pi. सिमिलरली इफ आई ड्रॉ अनदर डायग्राम एंड से दिस पॉइंट इज माइनस आयोटा. माइनस आयोटा कौन सा पॉइंट होगा? 0, -1, राइट? तो 0, -1 के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हुआ, 3 पाई बाई 2. जबकि ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, हमें पता है. या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट ही लिखो, ठीक है? अब देखो इसको भी समझते हैं यहाँ पर, तो जरूरी नहीं है ये वाली चीज हमेशा ही आर्ग्यूमेंट हो जो मैंने ऊपर लिखी हुई है. ये थीटा भी चलेगा, ये रिफ्लेक्स एंगल भी होगा तो भी मेरा काम होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो आई कैन राइट दिस ईदर एज e raised to power iota 3 पाई बाई 2, और अगर मेरे को इसको आर्ग्यूमेंट फॉर्म में लिखना है तो आर्ग्यूमेंट फॉर्म में हमें पता है रिफ्लेक्स एंगल्स नहीं होते, तो आप इसी एंगल को कैसे मेजर करते, यू वुड हैव मेजर्ड दिस एंगल एज क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा पाई बाई 2.
दीज टू टर्म्स आर इक्वल एक्चुअली। तो आप e की पावर आयोटा 3π/2 लिखो या e की पावर आयोटा -π/2 लिखो, बात बराबर है, दोनों का आंसर क्या हो गया, i, राइट। सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज प्रॉपर्टीज विच आई हैव बीन टॉक्ड राइट नाउ। ये सारे खुद घर पे बैठ के सॉल्व करें, एक बार लिख लिख के देखें तो आपका फ्लो बन जाएगा हाउ टू राइट समथिंग इन यूलर फॉर्म, ठीक है। The next important theorem that we have to do, which always goes side by side with Euler form, is De Moivre's theorem, right? Very important theorem, De Moivre's theorem. ये क्या कहता है, अगर आपका z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, या फिर आगे सब बोल सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को सबसे पहले मैं किस फॉर्म में लिख दूंगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा फॉर्म में लिख दूंगा, राइट। अब अगर मेरे पास कुछ इस तरीके की चीज है और आप कहते हो, या फिर आपके पास कुछ ऐसा था, मान लो ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अब मुझे z की पावर n निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, r की पावर n। होना ये चाहिए था कि हमें इसकी भी क्या रेज करनी थी, वी वांटेड टू रेज दिस पावर बाय n, बट सिंस वी नो द यूलर फॉर्म में ये क्वांटिटी क्या हो जाती है भाई, e की पावर आयोटा थीटा। देखो कितना सिंपल हो गया, ये पावर n क्या हो गई, अब ये नेट पावर क्या बन गई, ई की एन थीटा, एंड दिस कैन नाउ बी रिटन एज कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, एज सिंपल एज दैट। सो डी मोविस थ्योरम को कैसे याद रखेंगे, जो पावर एन है, राइट, ये पावर एन किस में चली जाएगी भाई, इसको याद रखने के लिए दिस पावर विल गो टू दी एंगल, ये पावर कहां चली जाएगी, देखो एंगल में चली जाएगी, इस तरीके से याद रखना है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट एन शुड बी अ इंटीजर, तभी ये वैलिड है, अगर n फ्रैक्शन है तब ये काम मत करना। डी मोवियस थ्योरम इज नॉट वैलिड व्हेन इट इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, वो आउट ऑफ स्कोप टॉपिक हो जाएगा जेईई मेंस के हिसाब से, जो कि हम ये पढ़ाते हैं कि अगर n अगर आपका मान लो फ्रैक्शनल क्वांटिटी है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। सो एक्चुअल में ये तब टॉपिक बन जाता है रूट्स ऑफ अ नंबर का, राइट, रूट्स ऑफ अ नंबर, बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस हेयर बिकॉज इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जेईई मेंस, राइट। जितना हम अभी पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी जेईई मेंस के स्कोप के बाहर है, हमें इससे ज्यादा नहीं करना, राइट। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट n शुड बिलोंग टू अ इंटीजर, तब डी मोवियस थ्योरम लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी है। ओके, लेट्स टेक द प्रॉब्लम्स व्हिच विल हाईलाइट द यूज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज। ओके, okay, now let's take a problem. It says find the principal amplitude of this particular complex number, right? We know that amplitude is nothing but, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं हम आपसे, राइट। एम्पलीट्यूड बोलूं या आर्ग्यूमेंट बोलूं बात बराबर है। अब z आपका कैसा दे रखा है, साइन 40 प्लस कॉस 40, ठीक है। इसमें एक काम करना, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप ऐड कर लेना, यहां पर आयोटा और आएगा, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है, ठीक है, यहां आयोटा ऐड कर लो। ओके, चलिए, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, जो हमने अभी पढ़ा कि अगर यूलर फॉर्म हो तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, और इसमें n अगर आपको क्या है पता है कि n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर, सो ये क्या हो जाता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सो अब आगे क्या करें, तो कई लोग इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट बड़ी खुशी खुशी फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, इसको जल्दी से 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा, ये क्या बन गया देखो, साइन 200 प्लस आयोटा कॉस 200, और वो क्या कहते हैं कि सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए, इसको हटा लेना, ठीक है, ये नहीं आएगा। सो वो क्या करते हैं, इसको बड़ी जल्दी से बोल देते हैं कि भाई सर अंदर एंगल कितना है, थीटा कितना है 200, राइट। 200 आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, या फिर वो जल्दबाजी में आर्गुमेंट ही 200 बोल के आ जाते हैं, 200 आर्गुमेंट है सर, थीटा इज 200। पहली बात ये वैसे भी गलत है, क्यों, हमें पता है आर्गुमेंट 200 नहीं हो सकता, आर्गुमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 180, तो अगर 200 है तो 200 का मतलब क्या होगा, कुछ इधर की तरफ का एंगल, राइट। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो आपको कैसे मेजर करना पड़ेगा भाई, एब्सोल्युटली यू विल मेजर क्लॉकवाइज। तो आप रादर देन इसको 200 बोलो, आप इसको क्या एंगल बोलोगे, इसको आप बोलोगे -160 डिग्री, राइट। तो जो अच्छे बच्चे थे वो क्या करते थे, इसको इस तरीके से -160 डिग्री दे आते थे, ठीक है। और जो लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो सीधा सीधा 200 डिग्री मार्क करके आते थे। तो 200 डिग्री तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, वो तो एम्पलीट्यूड हो ही नहीं सकता। कमाल की बात, -160 भी गलत है। वो क्यों गलत है वो देखते हैं। हमारे पास था z इज इक्वल टू, मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, साइन 40 प्लस आयोटा
cos 40 raised to power 5. ओके, अब अगर नोटिस करो जो हमारा फॉर्मूला है, what is there in the formula? Formula says cos theta plus iota sin theta raised to power n, right? Whereas what is written over here? Sin theta plus iota cos 40. So you cannot apply a formula here. Keep that in mind. So formula जिस syntax में लिखा है, you have to follow the same syntax. So you cannot apply a formula at this stage. That's the problem here. So what you will have to do is you have to convert this so that you can now apply the formula. वो कैसे करेंगे? हमें आयोटा किसके साथ चाहिए? वी नीड आयोटा विद साइन, बट वी डू नॉट रिक्वायर आयोटा विद कॉस. सो ठीक है, तो अब देखें कैसे हम इसको आयोटा में लाऊंगा साइन के साथ. वी नो दैट साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस 50. साइन 40 को आप क्या लिख सकते हो? कॉस 50. और आप कॉस 40 को क्या लिख सकते हो? साइन 50. राइट? कैन यू राइट लाइक दिस? अब जरा नोटिस करो, क्या ये फॉर्मूला बन गया? नाउ कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर? यस वी कैन, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला. सो अगर मैं अब फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा? दिस विल रिड्यूस टू कॉस 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद द एंगल. सो कॉस 250 आयोटा साइन 250. राइट? अब और ज्यादा गलती अगर हम करना चाहें तो उस क्वेश्चन में गलती कैसे होती है कि आप बोलो थीटा दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 250. क्योंकि अब ये रिड्यूस हो चुका है. आप इसको यूलर फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते हैं? आयोटा की पावर ई की पावर आयोटा 250 डिग्री. और उसमें हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट इज 250 डिग्रीज. बट अगेन वी नो दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ऑलवेज लाई बिटवीन -180 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज. सो 250 कैन नॉट बी द आंसर. तो 250 का मतलब क्या है वो देखिए. 250 का मतलब क्या हो? ये कुछ एंगल 250 डिग्री होगा. राइट? सो दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल, बट फॉर द आर्ग्यूमेंट व्हाट वी विल टेक नाउ? वी विल टेक द क्लॉकवाइज मेजरमेंट. अगर ये 250 था तो ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट कितना हो जाएगा? -110 डिग्री. राइट? सो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज, जो हम निकालना चाह रहे थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नथिंग बट -110 डिग्री. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मीन बाय फाइंडिंग एंड अप्लाइंग डी मोवियस थ्योरम एंड यूलर्स थ्योरम इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस. ओके, now let us apply this to another problem. Let us see, this is the problem that we want to find the value of 1 plus cos pi by 8 plus iota sin pi by 8 plus divided by this. So at the first go we can see that something of this sort, if it is given like this, ये जो चीज हमें यहाँ दे रखी है sin pi by 8, ये जो चीज है, right, ये तो perfectly can be written as e raised to power iota pi by 8. And sometimes in quick way or in fact we do forget about the rule and we directly say sir ये फॉर्म बन रहा है तो directly let's apply this कि 8 जो है इसको पावर को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, which reduces to cos pi plus iota sin pi. Alright, this is also the mistake that many students do, but this is wrong. This formula is only valid when only this term is there. That means when only cos theta plus iota sin theta is there. राइट? अभी यहां पर इसके आगे क्या है? प्लस कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा या फिर कुछ ऐड नहीं हो रहा. मल्टीप्लाई हो तो सॉल्व हो सकता है, ठीक है, बट उसमें प्लस नहीं होना चाहिए. राइट? आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप इसमें ये फॉर्मूला मत लगा देना. ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है? जब आपका कुछ इस तरीके से कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा होल रेज़ टू पावर n. यहां पर अंदर ही अभी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 और ऐड हो रहा है. तो 1 अगर ऐड हो रहा है वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई दी फॉर्मूला. सो वी नाउ नीड टू रिड्यूस दिस. जो हमें ये दे रखा है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8, जो हमें ये दे रखा है, अब मुझे इसी को किसी ना किसी तरीके से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट करना है. दिस इज नाउ द न्यू टारगेट. इसे इस तरीके से समझें दैट दिस इज द न्यू टारगेट. फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, दिस इज द न्यू टारगेट. देखिए कैसे करेंगे. ये जो चीज है ये 1 प्लस कॉस थीटा बन गया. व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा? अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला. दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. एंड इन ट्रिग्नोमेट्री अगेन आई कैन से sin थीटा इज व्हाट? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 I can say, right? So now apply this in the question. So what it will reduce? This will become 1 plus cos pi by 8 will be 2 cos square pi by 16 plus 2 iota sin
पाई बाय 16 बिकॉज यहाँ पर हमने ये साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया. सो हेयर थीटा इज पाई बाय 8. इट विल रिड्यूस. दीज टू आर कॉल्ड व्हाट? हाफ एंगल फॉर्मूलाज. हमने हाफ एंगल फॉर्मूलाज यूज करें. सो हाफ एंगल करें तो ये क्या हो जाएगा? cos पाई बाय 16. तो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन टेक cos पाई बाय 16 कॉमन. फिर अंदर क्या बचेगा नोटिस करो. cos पाई बाय 16 प्लस iota sin pi by 16. And yes, we have now reduced this into the form which we wanted. ये कोई प्रॉब्लम नहीं. ये तो उसके साथ बाहर क्या है? एडिशन में नहीं है. दिस इज इनटू मल्टीप्लिकेशन. सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट. सो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 cos pi by 16 e raised to power iota pi by 16. Very well, you can write this. No problems at all. So जो न्यूमरेटर था आपका, n ले लेता हूँ न्यूमरेटर को, तो n आपने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दिया. सिमिलरली यू कैन अप्लाई फॉर डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को d ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए. तो देखो क्या बन जाएगा. 2 cos स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस 2 iota sin पाई बाय 16 cos पाई बाय 16. राइट. और अगर इसी में फिर से वही काम करें कि 2 cos पाई बाय 16 कॉमन ले लें तो अंदर देखो क्या बनेगा इस बार. 2 cos पाई बाय 16 माइनस iota sin पाई बाय 16. ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें इसको किस तरीके से लिखना है. एंड नाउ वील इन फैक्ट ऑल्सो लर्न अनदर प्रॉपर्टी ऑफ यूलर फॉर्म. अब देखो ये वाली चीज जो है इसको तो एज इट इज लिखे रहने देते हैं. यहां पर आप cos में अगर पॉजिटिव एंगल डालो या नेगेटिव एंगल डालो बात तो बराबर होती. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. क्यों? मुझे पता है cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली. मैं ये माइनस वाला साइन एक्चुअल में अंदर ले गया एंगल में, जिससे यहां पर बीच में क्या आ जाए? प्लस. तो ये क्या बन जाएगा? आयोटा साइन माइनस पाई बाय 16. राइट. और अगर आप इसको नोटिस करते हो तो आपका ये किस फॉर्म में बन गया? आ गया आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्म में. यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर इस बार माइनस में. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो नाउ व्हाट यू कैन से इज ये क्या बन जाएगा? 2 cos पाई बाय 16 e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 16. Okay, so now what we can do, in fact I'll reiterate the formulas that we have done. हमने करा था e की पावर iota theta is cos theta plus iota sin theta. आप इसमें एक और फॉर्मूला याद करोगे. अब e की पावर माइनस आयोटा थीटा को आप क्या लिखोगे आगे से? cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा. ठीक है, अगर बीच में माइनस है तो पावर में भी माइनस में चला जाएगा, जो कि देखो यहां पर हो रहा है. राइट. अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. आपको दिख रहा है हमें क्वेश्चन में करना क्या था? वी वर टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. राइट. सो इफ वी डिवाइड n बाई डी करें जरा, अगर हम लोग n बाई डी, तो ये वाली जो टर्म आ रही है cos वाली, ये तो कैंसिल हो जाएगी. 2 कैंसिल, cos पाई बाय 16, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट. राइट. सो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज ओनली e की पावर आयोटा पाई बाय 16 डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 16. और ये पावर्स एडअप होके क्या बन जाएंगी? ऊपर चली जाएंगी ये वाली पावर, e की पावर आयोटा पाई बाय 8. राइट. सो जो रेशो थी मेरी, वो रेशो क्या आ चुकी है? दिस इज द रेशो e की पावर आयोटा पाई बाय 8. आपको रेशो का क्या करना था भाई? रेशो की पावर क्या यूज करनी थी? वी वर टू यूज रेशो की पावर 8. तो अगर मैं इसी को अब पावर 8 रेज कर देता हूं तो दिस 8 विल कैंसल आउट एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली व्हाट? e raised to power iota pi. what is e raised to power iota pi? सॉल्व करो. मैं अब डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं. दिस इज योर होमवर्क दैट यू विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग. दिस इज नथिंग बट -1. सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज -1. ये क्यों हुआ? cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई. साइन पाई क्या हो जाएगा भाई? 0. राइट. cos पाई इज -1. सो दिस इज द आंसर वी वर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर. तो इसमें हमने काफी नई चीजें सीखी. थोड़े बहुत हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए इसी बहाने इस क्वेश्चन के अंदर. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. यू विल नेवर फाइंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, बट दे विल बी आस्क्ड इन दी क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर टारगेटिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दैट मैटर, आप आज रात सबसे पहले बैठ के क्या करेंगे? यू विल राइट डाउन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज और उन्हें याद करेंगे. राइट. बिलीव मी, इसके बिना सारी मैथ्स बेकार है. तो आपको ये सबसे पहले क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज निकालने हैं. यू विल रिमेंबर देम बाय हार्ट. राइट देम ऑन अ A4 शीट. उसको अपनी टेबल पे रखें, हमेशा देखते रहें जिससे वो बार बार याद होते रहें. ओके ओके. नाउ लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड यूलर फॉर्म एंड द डी मोवियस थ्योरम.
ठीक है, इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनको समझने के लिए। ये क्या कहता है, एक्स एन इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 की पावर एन प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 रेज टू पावर एन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसको पहले समझने की कोशिश करें, इस सिंटैक्स को क्या मतलब है। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एन हेयर एंड यू विल गेट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई x1 पूछता है तो व्हाट डू यू मीन बाय x1 इज सिंपल, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग होल्ड ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो x2 में क्या करोगे, यही चीज में क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 स्क्वायर, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट हमसे पूछा क्या गया है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 एंड दिस गोज ऑन टिल इन्फिनिटी। ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं एंड हमें इनकी वैल्यू निकालनी। अब अगर नोटिस करो, आप इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हो, even if you are thinking of doing this particular activity, this is very tough to do, right? Obviously this is nonsensical if you try and multiply this, because इसमें ये दो टर्म नहीं है अभी, तो इसमें कितनी है, infinite terms है, right? This is where Euler form comes to our rescue. This is the beauty of Euler form. Let's see, अगर मेरे को इसको Euler form में लिखना था तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन से ही हिंट मिलेगी Euler form की। क्या ये चीज Euler form में लिखी हुई है? This is already in Euler form, राइट। यूलर फॉर्म थी क्या हमारी, ई की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में, थीटा का बस यहाँ पर रोल कौन प्ले कर रहा है, थीटा रोल इज बीइंग प्लेड बाय पाई बाय 2 रेज टू पावर एन, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, ईच ब्रैकेट नाउ रिड्यूसेस टू, ये क्या बन जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2, अगला ब्रैकेट ई की पावर आयोटा पाई स्क्वायर, सिमिलरली ई रेज टू पावर आयोटा पाई 2 क्यूब, राइट। एंड लास्ट ऐसे ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं nth टर्म लिखता तो क्या होता, 2 की पावर n, और ऐसे ही आगे इन्फिनिटी तक, राइट। यहां पर क्या हो गया, अब देखो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। सो द बेसिस आर सेम, दैट इज e, राइट। सो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड ऑल द पावर्स नाउ, राइट। सो दिस विल बी e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 स्क्वायर आयोटा पाई बाय 2 क्यूब, and this will go on till infinity. and if we try and solve it, let me try and solve it here. आप में देख रहे हो उसमें कुछ पैटर्न बन रहा है, आयोटा पाई बाय 2 कॉमन ले ले, so this will be 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square, and this will go on till infinity. and can you see that what is this term, this is a gp. in fact अगर मैं और वर्ड यूज करूं, प्रिसाइज इनफाइनाइट gp is the term. इनफाइनाइट gp का सम क्या था, हमने फर्स्ट लेक्चर में करा है, राइट। दिस इज द रीजन दैट आई हैव टेकन दी पैटर्न। सबसे पहले इसलिए हमने शुरू क्या करा, सीक्वेंस इन सीरीज, बिकॉज सीक्वेंस सीरीज हर जगह चैप्टर्स में यूज होता है। फिर हमने क्वाड्रेटिक करा, फिर हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स में इन दोनों के कंपोनेंट्स यूज होते हैं, राइट। सो इफ वी ट्राई एंड फाइंड एस इन्फिनिटी फॉर दिस पर्टिकुलर केस, इट बिकम्स 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 विच इज नथिंग बट 2। सो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 इंटू 2, which is again e की पावर आयोटा पाई, और ये पिछले वाला ही आंसर हो गया -1। इनफैक्ट देखो मैं प्रूव भी यही करना था, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आंसर्स टू दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो वेन एवर देर इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म गिवन एंड यू आर गिवन देयर मल्टीप्लीकेशन, जैसे यहां पर हो रहा था, देखो नोटिस करो, वेन एवर यू हैव टू फाइंड देयर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज अ बिग हिंट दैट यू विल हैव टू यूज यूलर फॉर्मूला, ओके। Okay, now let us take another problem to understand the same concept. So it says you are asked to find the value of this particular term, right? So सबसे पहले ऐसी सिर्फ एक टर्म ही लिख के देखते हैं कि वो क्या बनती है, that is sin 2 pi k by 7 plus, sorry, it is not plus, it is minus, right? Minus iota cos 2 pi k by 7, ये बनती है। तो पहली बात, क्या इसको कंपेयर करें, क्या ये हमारी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली फॉर्म में है, यूलर फॉर्म में नहीं है। क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो आयोटा है वो किसके साथ आ रहा है, नोटिस करो, ये जो आयोटा है किसके साथ है, दिस इज विद द कॉस टर्म। सो हमें इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है इसमें, वी वांट दैट आयोटा शुड कम इन टर्म्स ऑफ साइन। तो अभी हमने पिछले एक सबसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में जो आर्ग्यूमेंट वाला करा था, वी हैव सीन दैट हाउ टू डू दिस स्टेप। सो वी डिड दैट कि ये जो यहाँ पर एंगल्स हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, वी नो दैट द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो वी कैन कन्वर्ट देम
sine into cos and cos into sine. But now I will not use that concept. I'll teach you a new concept here, that how to convert these kind of things when iota is with cos, not with sine. अब देखो, तो यहाँ पर क्या है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा मान लेता हूँ, और लेट्स से तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, माइनस ही कर देता हूँ, राइट, माइनस कॉस थीटा। मुझे, मेरा टारगेट क्या है, मुझे कन्वर्ट करना है इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। मैंने इसी को क्या करा, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर एक नंबर को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ विच इज नॉट जीरो, तो देन देर इज नो प्रॉब्लम। तो क्या बन जाएगा, 1 बाय आयोटा। ठीक है, आयोटा, अब ऊपर वाले आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हुआ, माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस थीटा, राइट, लेट मी राइट दिस कॉस थीटा। आयोटा स्क्वायर क्या बन गया, ये देखो काम हो गया, समझ में आ रहा है, ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। क्यों, आयोटा स्क्वायर तो क्या होता है, -1। दिस बिकम्स इनटू योर यूलर फॉर्म, और आप अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय आयोटा ई की पावर दिस नाउ व्हाट यू कैन राइट। सो आगे से अगर आपको कुछ दे रखा हो इस तरीके से, तो आप इसको चाहे फॉर्मूले की तरह याद कर लो, मैं इसको फॉर्मूला नहीं कहूंगा, बट हाँ फिर भी इफ यू वांट दैट, इफ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज गिवन टू यू, राइट, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, और इसको अगर और रिड्यूस करूं तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। क्यों, 1 बाय आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा, आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको। लेट्स प्रोसीड अहेड। अब क्वेश्चन क्या था, अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। सो नाउ k इज इक्वल टू 1 to 6, ये माइनस आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या ली थी मैंने यहाँ पर, 2k पाई बाय, सो दिस इज 2k पाई बाय 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है वो तो समझ लें पहले। सो माइनस आयोटा को तो आप बाहर निकाल दो, उसका कोई काम नहीं है समीशन के अंदर। वेरिएबल ऑफ समीशन कौन है, k। तो अब देखो k की अलग अलग वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो ये क्या बना, e की पावर आयोटा, पहले k को 1 डालो तो 2 पाई बाय 7। अगली वैल्यू क्या आएगी, जब e को आप क्या डालो, क्या डालोगे, k को यू विल पुट 2, सो दिस इज 2 इंटू 2 पाई बाय 7 विच वी कैन से इज 4 बाय 7। अगला क्या होगा, इसी हिसाब से जब आप क्या बना दोगे, ये क्या बन जाएगा, 6 पाई बाय 7। तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, कितनी टर्म्स, 6 टर्म्स, क्योंकि 1 से 6 तक जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस आयोटा। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि ये क्या चीज बन रही है जो ये लिख रहे हो आप, व्हाट इज दिस, कैन यू सी दैट दिस इज अगेन अ जीपी ऑफ 6 टर्म्स। कैसे बनी जीपी, जिसमें आप देखो फर्स्ट टर्म मेरी क्या आ रही है, ए इज ई की पावर दिस, और कमाल की बात कॉमन रेशो भी है, ये ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 7। क्यों, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड अप होकर क्या होगी, 4 पाई बाय 7। 4 पाई बाय 7 में जब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा विच इज 6 पाई बाय 7। सो यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, अब इसका मतलब आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ, yes absolutely, so we'll apply formula for gp, so this becomes what, याद आ रहा है कुछ, मैं लिखूं या फिर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, Sn इज a इंटू 1 माइनस आर रेस टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 पाई बाय 7। कितनी टर्म्स हैं, 1 से लेकर 6, 7 टर्म नहीं हुई, 6 टर्म्स हुई, 1 से 6 नंबर्स होते हैं। तो आप इसकी अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे पावर तो कितनी हो जाएगी, आयोटा 12 पाई बाय 7, राइट, और नीचे हुआ 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 7। ठीक है जी, ये क्वांटिटी बन जाएगी। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, बस ये कंप्यूट करना रह गया, विच इज थोड़ा अभी हमें टफ लग रहा है देखने में। ठीक है, तो देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मुझे ऑड मैन आउट चीज जो दिख रही है, दिस इज द ऑड मैन आउट टर्म, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस। मुझे पैटर्न में तो समझ में आ रहा है कि भाई 2 पाई बाय 7 तो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, ये रहा और यहाँ पर रहा, बट दिस ई रेज टू पावर आयोटा 12 पाई बाय 7 इज समथिंग न्यू टू मी। लेट्स सी, ई रेज टू पावर आयोटा 12 पाई बाय 7 ये बनता क्या, वो देखें जरा। ये कुछ होता आपका 12 पाई बाय कॉस 12 पाई बाय 7, कुछ इस तरीके से। अब आगे से पैटर्न मैच करना शुरू करें। क्वेश्चन में हर जगह क्या टर्म यूज हो रही है, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 7। So our target is to reduce this particular quantity to e raised to power iota 2 pi by 7 only। यही टारगेट है मेरा, वो बड़े आसानी से हो रहा है यहाँ पर। कैसे, अगर मैं इस
क्वांटिटी को लिखना चाहूँ, जो ये लिखी है मैंने यहाँ पर, ये एंगल देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, cos 2 माइनस 2π/7, एंड आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज cos की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2 माइनस 2π/7, राइट। ये दोनों अभी भी एंगल्स क्या हैं, सेम ही तो हैं, 12π/7 12π/7, काम हो गया। ये क्या बन जाएगा बताओ, cos 2π, दैट इज cos 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो यू कैन इजीली राइट दिस एज 2π/7, ठीक है। और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, दिस इज, ये क्या बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर भाई, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला दैट साइन 2π माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। सो अब इसमें अगर माइनस साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, माइनस साइन आयोटा साइन 2π/7, नथिंग एल्स बट क्या बन गया भाई, ये देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, e की पावर माइनस आयोटा 2π/7, दिस बिकम्स e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2π/7, गेटिंग होल्ड ऑफ इट, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन नाउ रिड्यूसेस टू, ठीक है। हमारा क्वेश्चन अब इवेंचुअली बन के आ गया, मैं आई विल रीराइट दिस बिकम्स माइनस आयोटा, ये रहा माइनस आयोटा, ये था e की पावर आयोटा 2π/7, ठीक है। न्यूमरेटर में आपने ये इसको क्या बना दिया, इस वाली जो मैंने हाईलाइटेड क्वांटिटी, ये क्या बन गई, 1 माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2π/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e रेज़ टू पावर आयोटा 2π/7, राइट। अब यहाँ तक बन गया ये क्वेश्चन। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ये सॉल्व हो चुका, क्यों, लेट्स सी, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इस वाली क्वांटिटी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस में, पावर में माइनस आने का मतलब क्या है, यस एब्सोल्युटली, तो दिस बिकम्स रेसिप्रोकल। तो ये देख रहे हो अब क्या बन गया, ये हुआ माइनस e की पावर आयोटा 2π/7 डिवाइडेड बाय ये e रेज़ टू पावर 2π/7 इसी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या बनेगा, e की पावर 2π/7 माइनस 1, ठीक है। और आपके पास एक और क्वांटिटी क्या थी, 1 माइनस e रेज़ टू पावर 2π/7, ठीक है। दीज आर दी क्वांटिटीज दैट आर लेफ्ट विद यू, एंड नाउ इजीली यू कैन सी दैट दिस कैंसिल्स आउट, दिस कैंसिल्स आउट, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट बट विद अ माइनस साइन। So what you are left with, there was minus here, minus minus also cancels. You are just left with the answer as iota, and this is the answer option we are looking for, iota, right? So this is how you solve this particular question. Though in books you will find this particular question being solved as sum of nth roots of unity, right? People who have joined some coaching institute, they would also have taught them with sum of nth roots of unity, but since I have to teach this also for this particular question, that does not make any sense, and also this is far away from the syllabus of IIT JEE Mains. So I have just applied this particular question because in this particular fashion, because you can understand how to apply Euler and De Moivre's theorem. आपका इतने से ही काम बन जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। देयर ऑलरेडी हिल लॉट ऑफ फॉर्मूलाज विच यू विल हैव टू रिमेंबर। आपको केमिस्ट्री भी ऑलरेडी याद करनी है। आई डोंट वांट टू प्रेशराइज यू फॉर लर्निंग मोर ऑन मैथ्स, राइट। हम उतना काम करना चाह रहे हैं जितना बेसिक है, ऑलवेज कीप इन माइंड। सो दीज क्लासेज आर नॉट मेंट टू शार्पन योर topics, this is just with the regard to JEE Mains, keep that in mind, okay. Now let's take another beautiful application of Euler's, and this is a very standard problem. You will find this problem in I guess in each and every book that you can take off for IIT JEE. It says cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0. Alright, and you are asked to prove that cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 3 times cos of alpha plus beta plus gamma. At the first moment it looks like to be a trigonometry problem, right? इसमें हमें लगता क्या है, ये तो trigonometry की problem है, complex number में कहाँ दे दी। But the beauty is you can solve a lot of trigonometric problems using complex numbers. But that is the topic of advance, right? It is not to the JEE Mains level. But why I am taking this is very standard problem. Let's see how to apply a Euler form in this question.
हमें दे रखा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा, ये है 0। सिमिलरली हमें दे रखा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, दिस इज 0। ठीक है, अब इसको देखो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे यूज करूंगा। अगेन रिमेंबर व्हाट इज योर यूलर फॉर्म। इट सेज एनी नंबर z कैन बी टेकन एज r इंटू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, और इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आई कैन से सो। अब देखो what I will do here is, let's suppose z1 is cos alpha plus iota sin alpha. I can assume here, भाई कोई तो z1 एक नंबर ऐसा होगा ना जिसमें cos alpha plus iota sin alpha वो बन जाएगा। Similarly, without any problem, I can say there will be a complex number which will be cos beta plus iota sin beta, and similarly z3 will be there which will be cos gamma plus iota sin गामा, राइट। दिस इज माई अजम्पशन हेयर टिल नाउ। ओके, ये मैंने अजम्पशन कर ली। अब मुझे निकालना क्या है, कॉस 3 अल्फा। कॉस 3 अल्फा सोचो जरा कब आएगा। 3 अल्फा का मतलब क्या हुआ, यहाँ और यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया इंटू 3, 3x टाइम्स। वो कब होता है, डी मोवियस थ्योरम सोचो, जब यहाँ पर पावर क्या हो जाती है 3, एब्सोल्युटली। सो अगर मेरे को 3 करना था तो अगर मैं इनका क्यूब लेना शुरू कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 3 अल्फा आयोटा साइन 3 अल्फा। समझ में, मैंने एक स्टेप थोड़ा जल्दी कर दिया इसको। कैसे, क्योंकि ये क्या बन गया, आप इधर देखो z1 को लिख सकते थे e की पावर आयोटा अल्फा, दिस इज योर z1। आपने z1 क्यूब कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 3 अल्फा। सिमिलरली यू कैन से z2 क्यूब इज, गेटिंग द पॉइंट। ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो आगे से ये तरीका से याद करना बहुत जरूरी है कि हमने कैसे पावर्स को एंगल में लाना है, तो उसके लिए यूलर फॉर्म यूज करी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, राइट। सो ये 3 चीजें बन गई, ठीक है, गॉट इट। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इफ आई ऐड ऑल ऑफ देम, तो ये क्या बन जाएगा, z1 क्यूब z2 क्यूब, चलो मैंने z3 लिख दिया पहले, अब z2 को लिख देता हूं, इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, और सिमिलरली साइन 3 अल्फा लिख सकता हूँ। ये मैंने समीशन, आगे से समीशन समझ जाया करो, अगर सिर्फ इतना लिखा है तो इसका मतलब अल्फा की जगह बीटा आएगा, फिर गामा आएगा, और वो सब ऐड हो जाएंगे। मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। एक पार्ट ये है मेरा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और एक पार्ट है मेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। ये राइट हैंड साइड का क्या है, रियल पार्ट, एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द राइट हैंड साइड, राइट। सो दैट मीन्स मेरा, अगर मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं तो पार्ट 1 का आंसर क्या है, सो आंसर टू माय फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब, यही आंसर होगा, राइट। अच्छा, z1 क्यूब z2 क्यूब z3 क्यूब, इसमें भी अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अब हम इसमें लगाएंगे अलजेब्रा का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रा फॉर्मूला, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला याद है, दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये कब होता था, बट कब, जब इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। वही एग्जैक्टली यहां लग रहा है। How? Let's see. Now add these 3 here. So it will become z1 plus z2 plus z3. I can say summation cos alpha. उसी लॉजिक से cos alpha summation का क्या मतलब है, पहले cos alpha फिर cos beta फिर cos gamma plus iota summation sin alpha, right? But what is given to you? Notice here, summation cos alpha is 0, summation cos sin alpha is 0. So z1 plus z2 plus z3 becomes 0, which is the same thing as written over here. So can I say that this particular quantity will be real part of 3 times z1, z2, z3 by applying the formula of algebra? And what I can reduce from here is that this is 3 times z1 क्या बन गया, e की पावर आयोटा अल्फा, e की पावर आयोटा बीटा, e की पावर आयोटा गामा, और अगर आप इन सबको 3 बाहर निकाल दो, 3 का कोई काम नहीं है, रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा
क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। ये अब खुद में एक यूलर फॉर्म बन गई। तो इसका आंसर क्या है, सिर्फ वी वांट टू फाइंड इट्स आंसर इज नथिंग बट द क्वेश्चन इज नाउ ओवर। इट इज 3 टाइम्स, रियल पार्ट कौन सा होता है अभी देखो, इसका रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है ना, कॉस वाला कंपोनेंट। सो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, this is the answer we are looking for. See this proved, right? So just remember how we have applied the Euler form everywhere. The standard remains same, that e raised to power iota theta is cos theta plus iota sin theta. We are just applying this particular step everywhere, right? Revise everything that has been taught for these concepts, that is Euler and De Moivre. Very important, they reduce the question by drastic length, right? Okay, now let's apply this to another problem. It says, and it's a IIT-JEE problem by the way. All right, let's see. It says z is equal to cos theta plus iota sin theta. Again, notice that this is in the Euler form, so I can say this is e raised to power iota theta. Then you are asked to find the value of this particular summation, which is summation m is equal to 1 to 15. What do you mean by im? Im is the imaginary part of complex number z where power is being raised like this, right? So first of all, try and understand what do you mean by this, and we need to find this value at when theta is 2 degree. We'll see to this component later, but let us first of all understand what do you mean by this summation. So this is something of this sort, imaginary part of, first of all, z, put the value of m as 1, then we'll substitute the value of m as 2 because we want to go from 1 to 15. So this will become imaginary part of z cube. Similarly, it will move on like this, imaginary part of z5, और last term क्या बनेगी, imaginary part of z raised to power 29, right? This is the thing. Now we can say that what is z cube. Now we already know that z cube is e raised to power iota theta 3 theta, और इसकी imaginary term क्या बन जाएगी, we can say imaginary term of this particular quantity will be sin 3 theta, right? Similarly for z5, what will be the imaginary term, sin 5 theta, and for last term, that is z raised to power 29, imaginary term will become sin 29 theta, right? So this sum is nothing but addition of sin theta plus sin 3 theta plus sin 5 theta till what, summation goes till sin 29 theta. So you want to add all these terms of these sine series till 29 theta. So now why I have taken this question is that I want to highlight another trigonometric formula here. Notice another pattern here. Here this angle is theta, this is 3 theta, this is 5 theta, and this is 29 theta. Can you tell me the pattern? Yes, so they are in, the angles here are in AP. Angles are in AP here, right? So it starts with theta, goes to 3 theta. So what we can say, D is nothing but common difference कितना है, 2D in this particular problem. So this is the formula that I have to use in this particular question, okay? And you have to by heart this formula, right? So what it says, I'll explain it to you. It says that if A1, A2, A3 up till N are in AP, right? And we need to find, and these are basically the angles, okay? ये notice करो ये किसके अंदर लिखे हुए हैं, sin में. So these are angles. So angles are in AP, first of all, right? Angles are in AP. And if they are in sine series, तो formula क्या बन जाता है, sin nd by 2. N is the number of sine terms, D is the common difference here. D is common difference जो हमारा AP में होता है, simple वाला, ठीक है? This is the common difference, right? Sin nd by 2, sin d by 2, sine of A1, the first angle plus the last angle by 2, right? Let's apply this here to our S problem. So what is S then? Sin nd by 2. How much terms are there? How many terms are there? N is the number of terms in this expansion. So there were 15 terms. We were going from 1 to 15. So there were 15 terms. Okay. What is the value of D? D is 2 theta. So we'll say into 2 theta by 2, right? Divided by sin D by 2. So what is D here again? 2 theta by 2 into sine of A1 plus AN.
So A1 is the first angle, so this is the first angle and this is the last angle. So if we add them up, what will be the value? 29 theta plus theta will give you 30 theta by 2. This is how you have to apply this formula. And if we see, this becomes a very easy problem to solve now. Cancel out the terms, so what you will get? Sine 15 theta, right, divided by sine theta, right, and this will become what? Sine 15 theta again. Okay, so we were asked the value of this particular problem when theta was 2, right? So now just substitute the value of theta as 2. So this 15 theta will become what? 30 degree. This 15 theta will also become 30 degree. And we know the value of sine 30 degree. Sine 30 is 1 by 2. This is 1 by 2. So this becomes actually 1 by 4 sine 2 degree. Can we find this in a particular answer? Yes. So we can see this in the D option, and D option is the correct answer, right? So I've taken this problem to again highlight this particular formula. So you should actually add this to your formula list, right? Which I was just talking about. Start maintaining a formula list and revise it daily for, let's say, 2 minutes or so every night. Okay. Okay, now let us take another very important topic, that is cube roots of unity, right? Remember, I am skipping the part of the topic which says nth root of unity. That okay, otherwise I would have to spend another 1 hour to this lecture. We don't have that much time, and also that is not in the course, so that is why I am skipping. It is just simply cube root of unity. So cube root of unity का क्या मतलब है? You were solving x cube minus 1 equal to 0. So everybody knows that x cube minus 1 equal to 0 will give you answer something x equal to 1. But there is not just one answer to it. अगर आप notice करो, this is a polynomial on the left hand side. So polynomial में what is the degree here? It is a degree 3 polynomial. So degree 3 polynomial should have actually 3 roots. So when you say x equal to 1, this is only the real root of this particular equation, right? This is only the real roots that we are talking about. So if we solve this and break into factors, this will be x minus 1 into x square plus x plus 1. तो एक value तो आ गई, x is equal to 1. If you solve this particular quadratic equal to 0, you can see this is d is less than 0. And notice that I made you sure that you should remember this particular expression in the chapter quadratic also. And I mentioned that we will be using this term in complex numbers. So if you try and solve this, you will get these two answers for this quadratic equation, and they are very famous terms. One is known as omega, another is known as omega square, right? And you should remember now that for x cube minus 1 equal to 0, there are 3 roots, 1, omega and omega square, as I have mentioned here, right? Omega की वैल्यू क्या याद रखनी है? -1 प्लस आयोटा रूट 3/2. सिंस ये किस क्वाड्रेटिक के रूट हैं, आपके कैसे रूट्स आ रहे हैं? देखो, इमेजिनरी आयोटा आ रहा है, तो दे शुड बी व्हाट? कॉन्जुगेट रूट्स. कॉन्सेप्ट हर जगह वही अप्लाई होगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा. So these are actually conjugate of each other. So conjugate roots are there, right? So don't worry about them. So अगर यहाँ plus था, so this will be minus over here. But you should actually by heart. So again, formula, new formula for you. You have to remember this. People who do not know this. Okay. Also, you can do this and remember by a very easy formula. What? Let's say there is a circle of unit radius. You need to divide this circle in 3 equal parts, starting from, let's say, what? 1, 0. So this is 1, 0. Right? This will lie on the real axis. This is actually representing your this root, 1, 0. X equal to 1 means 1, 0 point. Now, if you want to divide the circle in 3 equal parts, सर्कल को अगर इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना, तो उसका मतलब क्या है? उसके एंगल्स को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, राइट? डिवाइड बाय n. हमें n कितना है? 3. सो 360 बाय क्या कर दो? 3. सो 360 बाय 3 इफ यू डू, व्हाट यू विल गेट? 120 डिग्री. सो एक्चुअल में 120 डिग्री रोटेट कर लोगे इस पे, तो आपको मिलेगा ओमेगा. फिर से 120 डिग्री रोटेट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर. सो ये कितने पे मिल रहा है? ये मिल रहा है 120 डिग्री पे. तो इनफेक्टिवली ये कितने पे मिल रहा है आपको? 240 डिग्री पे. तो अगर मैं यूलर फॉर्म में बात करूं, दैट इज व्हाई वी कैन से
W is or omega is e raised to power iota 2 pi by 3 and omega square is nothing but e raised to power iota 4 pi by 3, right? और you can say कि हमने इसका square कर दिया तो 4 pi by 3 आ गया, right? But we need to remember all these formulas, right? ये हमें याद होने चाहिए कि ये फॉर्मूले क्या हैं. Now coming to the properties of unity or cube roots of unity, they are also very important. First property, omega and omega square are conjugates of each other. और ये हमें पता ही है क्यों, they are roots of x square plus x plus 1. So if d is less than 0, complex roots आएंगे, right? हमें पता है ये बात पहले से ही, complex और imaginary roots, और वो कैसे होंगे, they will be conjugate in nature, right? ये हमने quadratic equations में already कवर कर लिया है. सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन से, ओमेगा का कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर. एंड इफ आई टेक कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, व्हाट यू शुड गेट, ओमेगा, राइट? अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट ओमेगा क्यूब इज 1. अगर आप ओमेगा का क्यूब कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1. इसी में एक्सटेंड करें पावर्स ऑफ ओमेगा का टॉपिक आपको मैं पढ़ाना चाहूँ, जैसे हमने पावर्स ऑफ आयोटा करा था, तो पावर्स ऑफ ओमेगा, W नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, ओमेगा. सो फॉर एग्जांपल हमें निकालना है ओमेगा रेज टू पावर 959, राइट? आयोटा में याद करो, हमने आयोटा में क्या करा था, वी यूज टू डिवाइडेड बाय 4 एंड द रिमाइंडर वाज द नेट पावर. यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड बाय 4 नहीं, डिवाइड बाय 3 एंड योर रिमाइंडर इज द नेट पावर. इस बार रिमाइंडर इज द नेट पावर. ओके, सो रिमाइंडर अगर आप देखो इस क्वेश्चन में अप्लाई करो, यहां पर 3 से डिवाइड करो, इसे कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, 2, राइट? सो रिमाइंडर विल बी 2. सो दिस वी राइट दिस पर्टिकुलर स्टेप. सो ओमेगा रेज टू पावर 959 इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर. ऑलराइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग हायर पावर्स ऑफ ओमेगा. Another very important result is 1 plus omega square is 0. और इन अ वे आप इसको ऐसे याद रखो, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0. इसको कैसे याद रखोगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0. इसको कैसे याद रख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, राइट? इसको इस तरीके से याद कर लो, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट जो और याद रख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? इसको ऐसे याद कर लो. इसको कैसे याद करने का तरीका क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 निकाल रहे थे आप, इसका मतलब ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. सो फॉर रिमेंबरिंग दिस इज x इक्वल टू -1 एंड नाउ यू शुड बाय हार्ट दैट जब मैंने ये लिखा था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो रूट्स क्या आए थे, ओमेगा स्क्वायर. अगर आप x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखोगे तो रूट्स विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर. ओके, ऑल्सो रिमेंबर दैट मॉडुलस ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, मॉड ओमेगा स्क्वायर आर बोथ 1. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रूट्स ऑफ यूनिटी हैं. किसी भी यूनिट आप 1 का कोई भी रूट निकालोगे उसका मॉडुलस हमेशा क्या होगा, 1. ठीक है, मैं इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके समझा सकता हूं, but we don't have that much time. Alright, again this is a topic which I teach for 2 classes in my classrooms, but since we are short of time we have to just remember the formulas, do the basic and move ahead. Okay, please do it as I have specified. If you start wasting your energy in this particular chapter, you will find that आपका पूरा जनवरी इस चैप्टर में चला गया and we'll lose out everything. Okay, so now let's see how to apply these things in the questions. So let's say this is the first question. We need to find the value of this particular question. First of all, tell me what is the pattern. Can you see a definite pattern here? The pattern is it is going through 3 n terms. So that means if I can see a pattern, what is omega 4? Now I have told you that whenever you find a power of omega which is greater than 3, आपको करना क्या है, divide by 3. Right, and the remainder is the net power. That is what we have just done. Remainder is the net power. These 2 steps. So अगर 4 है तो ये क्या बन जाएगा, remainder is 1. So this is nothing but 1 plus omega. What you can write, omega 5. This is nothing but omega square. Similarly आगे बढ़ते तो क्या आता,
ओमेगा क्यूब। सो आप नोटिस कर रहे हो पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर 3 टर्म के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है इन अ वे आई कैन से। और कितनी टर्म्स हैं? 3n। सो कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे? ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3 एट अ टाइम, जैसे पेयर बोलते हैं 2 एट अ टाइम, ट्रिपलेट्स 3 एट अ टाइम। तो हाउ मेनी ट्रिपलेट्स विल बी देयर? 3n टर्म्स में कितने ट्रिपलेट्स? n। तो आपको सिर्फ क्या करना है एक्चुअल में, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी और इसकी पावर क्या हो गई? n। बिकॉज आगे वाली सारी टर्म्स क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं, राइट। उसमें भी अगर नोटिस करो ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1, हमें पता है, हमने अभी करा ओमेगा क्यूब इज 1, और एक हमने फॉर्मूला करा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। तो ये वाली क्वांटिटी तो क्या बन गई? 2। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई बोथ दीज टर्म्स। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन रहा है? देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, एंड दिस इज होल रेज टू पावर n, राइट। ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या बन गई भाई? फिर से रिड्यूस होके 0। यू आर लेफ्ट विद ओमेगा क्यूब विच इज नथिंग बट 1। दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू पावर n। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो इसमें ओमेगा में बड़े इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। जस्ट प्रैक्टिस एंड मूव अहेड, ओके। Let's apply this to another problem, and this is a very famous problem. This has been asked in JEE mains also. I should not say JEE mains but AIEEE, right? This has been asked in AIEEE. उस समय AIEEE में cube roots of unity was in the syllabus itself. अब आपके syllabus में नहीं है, that is the problem, right? So students who are doing the past year of each and every topic, जो मैं भी provide कर रहा हूँ, keep in mind that past years for less than 2009, ठीक है। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देम, डोंट वरी, बिकॉज यहां इससे पहले सिलेबस वाज डिफरेंट, राइट। सिलेबस वाज कंप्लीटली डिफरेंट हियर। इन फैक्ट इफ यू ट्राई एंड सॉल्व AIEEE प्रॉब्लम्स ऑफ 2000 लेट्स से 4 और 2005, यू विल फाइंड देम वेरी डिफिकल्ट, राइट। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते थे, ऑलमोस्ट JEE लेवल के होते थे इनसे पहले वाले। बट हमारा अब जो ट्रेंड है पेपर का वो काफी चेंज हो गया है, राइट, एंड वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन इट। इट सेज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे से अब जब भी आपको ये क्वांटिटी दिखे तो यू शुड बी वेरी हैप्पी दैट यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। वी हैव डन दिस ऑलरेडी, दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स, x इज इक्वल टू ओमेगा एंड x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। नाउ इफ यू डू नॉट बाय हार्ट दिस, आई कांट हेल्प यू, ओके, यू हैव टू समहाउ डू दिस। तो या तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा या ओमेगा स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करेगा। लेट्स टेक केस 1, केसेस वाइज चलते हैं। मैं पहले सबसे पहले इसमें सेटिस्फाई कराऊंगा x इक्वल टू ओमेगा को, ठीक है। ब्रैकेट बाय ब्रैकेट चलते हैं पहले और फिर से पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर लेंगे। तो अगर आप देखो इसमें क्या बनता है, ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड टर्म विल बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। थर्ड टर्म विल बी ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब। फोर्थ टर्म लिखो जरा, यस यू मस्ट हैव गॉट इट बाय नाउ। फोर्थ टर्म लिखते ही तुम्हें दिख रहा है पैटर्न बनना शुरू हो गया। क्यों? ये ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा? व्हाट इज ओमेगा रेज़ टू पावर 4? दिस इज नथिंग बट ओमेगा, और ये भी क्या हो गया, विच इज नथिंग बट इक्वल टू दिस टर्म। तो मेरी T1 टर्म 1 और टर्म 4 जो है वो सेम आ गई। Similarly, I can say term 2 and term 5 will come out to be same, and I can say term 3 will come out to be same as term 6. So same pattern as we did in the previous question. और in fact ओमेगा वालों में हर बार आपको पैटर्न ही पकड़ना है। They are pattern based problems. So कितनी टर्म्स है भाई इसमें क्वेश्चन में? There are 27 terms. So 27 में कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे? डिवाइड बाय 3 कर दो। तो दैट मीन्स कितने बार आएगी भाई ये चीजें? 9 टाइम्स रिपीट होंगी ये चीज। सो आई कैन से, सिंस ये ऐड हो रहे हैं तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरे को आप 9 टाइम्स ऐड कर लो। जस्ट सॉल्व दिस एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 9। क्यों? ये 9 बार पैटर्न रिपीट होगा इन वेरी सिंपली, राइट। ये स्क्वायर लगा लेना, या स्क्वायर नहीं लगाए थे मैंने, राइट, ओके। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो अब 27 वाली टर्म्स हटके कितनी रहेगी? 3 टर्म, पहली बात, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान हो गया थोड़ा।
अब अगर मेरे को इसको आगे रिजॉल्व करना है तो अब वो देखो कैसे करूंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है आपके पास, ओमेगा आ रहा है। हमें वो सॉल्व करना नहीं आता है, बट हमें आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1/ओमेगा, मैंने इसको क्या करा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे क्या बन गया, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब कितना होता है भाई, 1 पता तो है मैं, तो आगे से आप 1/ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली 1/ओमेगा स्क्वायर, फिर से ओमेगा और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा, नीचे ओमेगा क्यूब ओमेगा। समझ में आई बात। सो दिस सिंपली रिड्यूसेस टू, नाउ सी व्हाट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये वाला ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अगले वाले में कुछ करने की जरूरत है, वो तो क्या है, ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब। तो ये भी क्या है 1 और ये भी क्या है 1 और इसका स्क्वायर, राइट। व्हाट वी हैव डन फॉर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फॉर्मूला नोटिस करो, हमने फॉर्मूला करा है अभी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। so this implies ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट -1। तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, एब्सोल्युटली। अब आप सबका आंसर आ चुका होगा। तो 9, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, दैट्स इट। सो दिस इज नथिंग बट 9 इंटू 6, आंसर कम्स आउट टू बी 54. So this is the answer we were looking for in this particular problem. This is how you solve questions based on omega. ठीक है, इतने ही क्वेश्चन से काम बन जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, अगर पूछे भी गए तो, जबकि ये सिलेबस में नहीं है। इवन इफ दे आस्क, इससे ज़्यादा हाई लेवल दे कैन नॉट आस्क। ओके Okay, now let us move to another very important concept which is actually mentioned in JEE main syllabus also, that is triangular inequality. And these are the two triangular inequalities that we have to do. And again, these are formulas. First of all, you have to by heart them, all right? So these are again formula for you, but they are very easy to remember. For example, if I say z1 plus minus z2 का mod, after addition I am taking mod. If I take individual mod and add them, obviously addition would be मच ग्रेटर। ओके, इसको कैसे याद करना है भाई, आप ये हमें पता है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब अगर ये हो सकता था z1 नेगेटिव भी हो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर योर सेक ऑफ रिमेंबरिंग, आप z1 को ले लो 5 और z2 को ले लो -7। सो LHS क्या बनती, z1 प्लस z2 क्या बनता भाई आपका, लेट्स से ये तो आता मॉडुलस -2 जो कि आता 2। RHS क्या आता आपका, नोटिस करो इसमें, वो पहले क्या करता मॉड 5 और पहले करता मॉड 7, तो ये करता 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 12। सो ऑब्वियसली आपका राइट हैंड साइड इस केस में क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। सेम अप्लाई करो आप माइनस में, सेकेंड क्वांटिटी में माइनस, यहां पर देखो अब की बार इसका RHS बताओ मुझे क्या बन रहा है, ये बनेगा मॉड 5 माइनस -7, this comes out to be -2, राइट। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता z1 माइनस z2 सेम नंबर्स के साथ, तो अब की बार ये पहले क्या बन जाता 12, इसलिए साइन देखो यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। सो जस्ट रिमेंबर दैट इफ यू आर एडिंग देम अप, अगर कुछ ऐसा है z1 प्लस z2 मॉड और आप कहते हो उनको मैं इंडिविजुअली ऐड करूंगा तो दिस विल बी ग्रेटर। आप इन दोनों को लेट्स से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और आप उनको इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट करते हो तो कौन बड़ा होगा, ये वाली साइड बड़ी होगी। ये दो मेजर हैं जो आपको याद होनी चाहिए, दो और बनेंगी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इन्हें अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, लेट्स से इट सेज दैट हमें तीन चीजें दे रखी हैं, z1 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, z2 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 और z3, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा है हमें। इनके बारे में हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 की मॉड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है यूजिंग दिस, ठीक है। अब देखो इनको यूज कैसे करेंगे। एक तो तरीका है कि हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएं, बट अगेन इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ जेईई मेंस, सो वी विल नॉट डू द ज्योमेट्री पार्ट, ठीक है।
कई स्टूडेंट्स को आती होगी ज्योमेट्री, दे वुड ट्राई एंड सॉल्व दिस बाय ज्योमेट्री, जिसमें ये सर्कल्स की इक्वेशन बन जाएगी, बट वी विल नॉट डू इट दैट वे। ठीक है, तो बिना ज्योमेट्री के देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हियर यू आर आस्क्ड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू यूजिंग ऑल दिस। ठीक है, हमें यूज तो यही करने हैं, तो यूज करने तो पहले इन्हें बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमने पीछे फॉर्मूले करे थे ये वाले z1 प्लस z2, ठीक है, ये हमने करा ना अभी, z1 प्लस z2 का क्या होगा, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। इसमें कितनी क्वांटिटी थी या कितने कॉम्प्लेक्स नंबर थे इन्वॉल्व, 2। ये अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होंगे तब भी ये चीज वैलिड है। सो इफ आई से दे आर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनका मैं पहले एडिशन करूंगा और फिर मॉडुलस लूंगा, दिस क्वांटिटी विल स्टिल बी स्मॉलर देन अगर मैं उनका इंडिविजुअल मॉडुलस ले लूं, राइट। दिस इज द फॉर्मूला दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब यहां पर कितनी क्वांटिटीज हैं, 3। तो पहले इन 3 क्वांटिटीज को सीधा ये नहीं करना है कि आपने यहां पर उठा के ये लिख दिया, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों, वी डू नॉट नीड, और इनफैक्ट वी डू नॉट हैव द वैल्यूज ऑफ मॉडुलस z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस z3। तरीका यही है दिमाग में अगर आपको सोचना है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक कि ये मॉडुलस z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस z3 में ब्रेक करना है। बट ब्रेक कैसे करना है, हिंट मिल गई आप लोगों को। मुझे पता क्या है, z1 माइनस 1, z2 माइनस 1 एंड z3 माइनस 3, सो आई विल ट्राई एंड ब्रेक अप इन दैट फॉर्मेट। लेट्स सी हाउ। मैंने LHS को पहले z1 माइनस 1 बनाया, फिर z2 माइनस 2, and then I have written z3 minus 3. So in this process I have added, or in fact I have subtracted 1, 2 and 3. This is 6. Just add 6. So LHS is still the same. Notice. So you started from this particular quantity and I'm still here only. Right? Up till this step it is, these two are equal. Now apply this formula, this particular formula to this particular problem. So I can say there are 4 numbers here, first, second, third and fourth, and if I say this is less than or equal to modulus z1 minus 1 plus modulus z2 minus 2 plus modulus z3 minus 3 plus modulus 6, right? Modulus 6 is nothing but 6 only. And now you can directly apply. So modulus of z1 minus 1 maximum value is 1, so this is 1, plus modulus z2 minus 2 is maximum value is 2, the next maximum value is 3, and this is this. So if we add all of them, we'll get our answer as less than or equal to 12. So the maximum value of the required quantity is nothing but less than 12, or we can say, sorry, maximum is 12. So this is the answer we were required to find. Okay, so this is how you have to break everything in the triangular inequality, by using this formula. So this is the most important formula for breaking things down. Okay, let us apply the triangular inequality to a difficult problem. So here we again are asked to find the maximum value of this particular term, but now what is given is not a simple term, it's a quadratic inequality. What is given to us is quadratic inequality. So first of all, let us try and solve this quadratic inequality component, right? Which is very easy. If you can see, this is nothing but we can do middle splitting with this. Can you see this? We can just write something like this. So what is this? This is nothing but mod z minus 2 into mod z plus 1 less than 0, right? Now these two terms are there and they are what you want this inequality to be less than 0. See the second term, this is always positive because mod z is always a positive quantity and you are adding 1 to it, so this will always positive, right? This is always positive, so we can leave this from the inequality component. So what you are left with is just mod z minus 2 is less than 0, or I can say mod z is less than 2. This is what is obtained from this particular inequality. And for the critical part, what we can say that maximum value of mod z can be 2 in limiting case. I know that it is not equal to 2 here, but in the limiting case
I can say that maximum value of mod z is nothing but 2. Up till now this is clear to me. Now let me take what is to be found out. So we need to find the value of mod z square plus z sine theta. Right? Now again, if I say there are two complex number here, this is the first part and this is the second component. So this should be less than or equal to mod z square plus mod of z sine theta, right? We did in the last class that mod of z square can be written as mod z square plus, and now I can also split these two. I can say that there are two numbers z and sine theta, so I can split the mod like this, right? Now for the maximum value component, we need to find the maximum value of RHS also, right? For this RHS we need the maximum value, right? What is the maximum value of sine theta? Sine theta's maximum value is nothing but 1. So let's substitute the maximum value of sine theta here. So that will become what? Mod z square plus modulus z, and also we need the maximum value of mod z. So mod z max I can say is 2. So this becomes less than or equal to what? 4 plus 2, which is nothing but 6. So the maximum value of the required quantity, so maximum value of required quantity is 6. This is the answer we were asked to find, and this is how you solve triangular inequality again. Okay, now let's take the last problem to understand this triangular inequality component. Now what is given to you is that z plus 2 iota is less than equal to 1. So that means you are given the maximum value of this. Maximum value is what? 1 over here, right? Now you are asked to find the maximum and minimum value of this particular quantity, right? You are asked to find maximum and minimum value of this. We need both this time, maximum and minimum also, right? So for maximum only we will solve first. Let's say for maximum, this is just similar to what we did earlier, right? So just represent this particular quantity in this particular context. So if I say z plus 2 iota, so here in the original question it was what? Only iota. So what you will have to do now, you will also have to subtract iota from here. This is the only change that is required. Okay, perfect. So now I can say that this is my first complex number and this is my second complex number. Let me write it again for you. And do not worry about the negative sign. So let's say I can say this is something of this sort. This is the second number. And if I have to apply this property, so this will become z plus 2 iota modulus plus modulus of minus root 3 minus iota, like this, right? Why I am applying this property? Let us now understand this fact. So the property says z1 plus z2 is always less than or equal to modulus z1 plus modulus z2. So when you use this particular expression, this gives you the maximum value. क्यों? जो RHS में जो भी चीज होगी, LHS उससे हमेशा छोटा ही होगा. That is what is meant by the maximum value, right? So for getting this particular sign, we are making this particular pattern. Okay, now see, this question is solved. Again, the maximum value of this is given, right? कितना है? 1. And for this you can just find out, this is nothing, it's a pure complex number, so it is nothing but root of 3 plus 1, 3 square under root 3 square plus 1, which is 2. So 1 plus 2, so the maximum value is nothing but 3. So the maximum value of the required quantity is nothing but equal to 3. This is what we can say, right? Greatest value is 3. So already we can say only A option satisfies the criteria. So either A would be the answer or none of these would be the answer, because we still need to find the least value. Now let us look at the least value. For least value, what you people will require? You will require a sign which says something of this sort, that this is always greater. So this is mean, what does this mean? Always greater. So always greater means always greater than RHS. So RHS value, the minimum value of RHS will be the minimum value of this
LHS, right? So for this, what we will do, we'll use this particular property, or plus, sorry, right? We'll use this now. So again, if you see what I can say, we have already written the expression in the desired format. We can say z plus 2 iota, right, minus root 3 minus iota. Now I can represent them by using this inequality as z plus 2 iota, and now put a negative sign in between of minus 3 under root minus iota, right? Now if you see again, I can say this is 1 and this is 2, so this value becomes minus 1. So now you are confused what is this minus 1, but don't worry, this is not minus 1, actually this is equal to 1 only. Why? Because you could have written this as this also, right? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे. It is just that आपने पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, तो आप क्या याद रखो, जो भी आपका आंसर आएगा, वट एवर आंसर दैट यू विल फेच बाय यूजिंग दिस, आप उसका क्या लोगे इवेंचुअली, मॉड. सो मॉड लेने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 1. सो द मिनिमम वैल्यू इज नथिंग बट 1, not minus 1. Mod can never take a minus 1, okay, for that matter. So even if you try and say that this particular quantity takes minimum value, let's say you say answer minus 1, so this is absurd. This modulus can never be negative, so it will only take positive values. So the required quantity, I can say, ranges from 1 to 3. This is the thing which is given in option A. This is how you solve these kind of problems. So just revise the 3 questions that you have taken on the triangular inequality to understand the concept. It is more than sufficient. You will not be asked in questions which are difficult than the ones which I have taken. So don't worry about it. They are very good questions to revise. Okay. Okay, now let's take the last question and the last concept of this particular chapter and the video. So it is something of the equilateral triangular property. So let me just write the property first for you. It says that if z1, z2, z3 are the vertices of an equilateral triangle. So what does this mean? That let me draw a diagram here. So let's say if this is a triangle with z1 one vertex, z2 being the other, and z3 being the third vertex. So what algebra we can say is z1 square plus z2 square plus z3 square will be nothing but equal to z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1. So this is the property or a formula that you should also remember, right? This is the formula that you should remember, that z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1. The reason that I have also taken this concept here is it might be asked in examinations like BITSAT. BITSAT people do ask these kind of problems based on equilateral triangular concept. So now let's see how do we apply this particular concept in this question. So it is said that z0 here is also the circumcenter of the equilateral triangle. So if we talk about a bit about equilateral triangle, so for equilateral triangle, can I say circumcenter, right, is nothing but equal to centroid? Because in equilateral triangle, all of them coincide. So circumcenter is nothing but equal to centroid. And how do you find centroid? So centroid कैसे निकाला जाता था कार्टेशियन सिस्टम में? कार्टेशियन सिस्टम में याद करो, हम कहते थे ना x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, राइट? और फिर ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3. तो वहां पर दो चीजें होती थी, x भी और y भी. पर जब हम आर्गेंट प्लेन की बात करते हैं, जहां पर वर्टेक्स को सिर्फ हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर से लिखते हैं, z1 z2 z3, क्यों? ये खुद में दो नंबर्स हैं. क्यों? z1 होता क्या है जनरली, अगर आप इसको लिखोगे तो लिखोगे क्या, x1 प्लस आयोटा y1, तो ये x1 y1 ही पॉइंट आ गया. तो उस लिहाज से वी जस्ट से द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस ओनली. These and these are automatically equal because z1 is x1 plus iota y and so on, right? So circumcenter is nothing but z1 plus z2 plus z3 by 3. Now if you know both these facts, now let's say apply this to the question. So आपको कहा है z0 is the centroid or the circumcenter. Now I can say this is the thing which I already know, right? ये मुझे पता है.
or I can say 3 times z0 is equal to z1 plus z2 plus z3 स्क्वायर। और मुझे अभी तक ये तो ये क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन था वो आप अप्लाई करा, ये आपको गिवन था क्वेश्चन में, और आपने अभी तक पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज नहीं करी है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो लेट्स अप्लाई। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा इसमें, you have to square, so let's do the squaring component. Squaring, this becomes 9z square is equal to z1 square, z2 square, z3 square, और वो क्या आता है 2ab bc ca, तो क्या बन जाएगा 2 times z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1, right? Now apply the property. Apply the प्रॉपर्टी क्या कहती है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z1 z2 एंड z3 z1. So this can be actually written as z1 square, right? Got the hold of it? So this is nothing but this reduces to 9 z0 square is equal to 3 times z1 square z2 square plus z3 square. ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन गया, सो आई कैन से z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 3 टाइम्स z0 स्क्वायर, which is the C option, and this is the answer we are looking for. That's it, right? This is how you have to solve this particular kind of question, right? I'll not be taking more questions on the equilateral triangle. This is the concept that has to be applied, and these kind of questions only will be asked. Don't worry about it. So in fact, this question is more than enough for you to revise the equilateral triangle property in complex number. Okay, so by this we come to the end of this particular topic. I hope that you people have learned what I have taught in these 2 classes of complex number. Again, I am repeating, it's a difficult topic. Don't mess it around too much. जितना पढ़ाया गया है उतना करें. It is more than sufficient. Okay, and today I will be mailing you the sheets of day 5 and day 6 combined. Also tomorrow I'll send you a revised schedule, because we have to revise the schedule, right? I'll send you a revised schedule, right? Because that is now required, because day 6 was allotted to binomial. Now we are just doing day 6, we are on day 6 and we are just doing the complex yet. So you will be given a revised schedule maybe on Saturday or Sunday, right? Let me see when I can give time to this particular thing as well, and but I'll send you the worksheets. Okay, also I'll be sending you the feedback form today for the complex number part. Just fill it so that again I can make the necessary adjustments in my videos. Okay, thank you for your time. See you tomorrow with a new chapter. God bless.